अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, नवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम कर्नाटक का स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड की जानिब से असेसमेंट एसए 2 का क्वेश्चन पेपर मार्च 2004 मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश 8th क्लास का। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन, माय मदर बॉट अ न्यू हैंड। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो यहाँ पर क्या होता, माय मदर बॉट अ न्यू हैंड बैग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शोभा फेल्ट डिफिकल्ट टू डांस। तो यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है? डिफिकल्ट, इजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a dash of grapes are sour. A bunch of grapes are sour. The king had a dash gem. तो correctly spelled word magnificent gem. The students played cricket in the ground. तो यहाँ पर verb क्या है? Played is the verb. Option number A is the right answer. One who treats the patient is a doctor. C. Dash class are you studying in? Which class are you studying in? यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लिखना है, मदर एंड चाइल्ड। द मदर्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काव्य एंड कन्या डैश बेस्ट फ्रेंड्स, आर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, sang melodiously he the song। तो यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंज करना है। he sang the song melodiously। ऑप्शन नंबर डी। Ramya went to the market dash her mother, with her mother. My uncle and aunt attend the function. Option number B is the right answer. The word dine rhymes with the word. तो rhyming word यहाँ पर क्या है? Dine, wine. Next, he dash from mouth cancer. He suffering from mouth cancer. Some plants are tiny in size. Tiny का meaning क्या है? Small, छोटा. Observe the given pictures A, B, C and D. Tree D is the dash among the 4 trees. Taller among the 4 trees. Option number B. Next, second main. तो observe the given picture and answer question number 17 and 18 in phrase। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? Doing the exercise। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। What are the children doing? The children are doing exercise. नेक्स्ट क्वेश्चन का है, Why are they doing it? ये किस वजह से एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? Because of the they will become fit and healthy। से तो तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। तो ए क्या है यहाँ पर? प्लफिंग द लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। फर्स्ट का क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेकेंड, sowing the seed to grow crops. Second one is the C. Next, third, using chemicals or organic fertilizer for proper growth the crop. Next, fourth one क्या है? Harvesting the crop either manually or with the help of machines. Fourth का A. Next, match them correctly and answer with the question. What are the pictures in column A related to? Column A किसके related के pictures हैं? Farming, खेती के, farming. What do pictures first and second describe? Picture first and second describe ploughing the land and sowing the seed to grow crops. Next, third में duels directed for question number 21 to 26. ये 2 marks के questions हैं.
One day, a stranger come to Tenali Rama's house. He met Tenali Rama and said, "I come from a far off village. I am very tired. Will you give me shelter for 2 days?" तो तेनालीराम आकर क्या पूछ रहा है, क्या तुम मुझे 2 दिन के लिए रुका ले सकते हो क्या? आई विल स्टे हियर फॉर 2 days एंड देन गो अवे। मैं 2 दिन के बाद यहाँ से चला जाता हूँ। तेनालीरामा पूछ रहा है, अग्री कर रहा है। तेनालीरामा रेडीली अग्रीड, अग्री हो जाता है। दिस मैन हैड बीन सेंट बाय द किंग ऑफ अ नाइबरिंग किंगडम। तो वहाँ करीबी राजा के, वो इसके राज्य से आया रहता हूँ। ही वॉन्टेड टू किल किंग कृष्ण देवराया। How could Tenali Rama even suspect such a conspiracy? The following day, Tenali Rama and to go to his village and on personal work. The stranger got the opportunity he had been waiting for. Read the above piece of language and answer the given question. Why did Tenali Rama agree to provide shelter? Tenali Rama क्यों मंजूरी दी, क्यों उसने इजाजत दी कि मैं तुम्हें शेल्टर दे दूँ। द मैन कम फ्रॉम अ फॉर ऑफ विलेज, आई एम वेरी टायर्ड एंड ही सेड स्टे हियर फॉर 2 days एंड देन गो अवे। क्योंकि मैं बहुत जैसे करीबी गांव से आया हूँ, तो मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे 2 दिन के लिए रहने के लिए जगह दीजिए और मैं फिर चला जाता हूँ। इसलिए तेनालीरामा क्या हुआ, अग्री हो गया। रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Weavers weaving at break of day, why do you wave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we wave the robes of a newborn child. Weavers waving at fall of night, why do you wave a garment so bright? Like the plums of peacock, purple and green, we wave the marriage wheels of a queen. Wavers waving Solomon and still, what do you wave in the moonlight chill? White as feather and white as a cloud, we wave dead man's funeral shroud. तो यहाँ हर तरह के कपड़ों को बुना जाता है, जैसे कि शादी ब्याह में और बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए, और कफन के कपड़े, सब हर तरह के कपड़ों को बुना जाता है। उसका एक पोएम है, सरोजिनी नायडू ने लिखा है। द पोएटेस मेंशन एज 3 stages of life very nicely with the cloth woven by the weaver, which are they? तो यहाँ 3 stages of life रहती है। तो पहले बचपन रहता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और उसके बाद मौत आ जाती है। क्लॉथ woven by the weaver are robes, garment, marriage wigs and funeral shroud। भाई वेवर्स है रोब्स को तो बच्चों के लिए, गारमेंट्स कपड़े, मैरिज विग्स तो शादी ब्याह के लिए कपड़े, फ्यूनरल श्राउड का तो कफन के कपड़े, हर तरह के कफनों को यहाँ पर बुना जाता है। सावित्री बाई वॉज born on 3 January 1831. She was the first female teacher of the first women's school in India. She was also a social reformer. She had taken women's education and the liberation from the cultural patterns of the male-dominated society. As mission of her life, she worked towards tackling some of the major social problems, including women's liberation, widow remarriage, and removal of untouchability. तो सावित्री बाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर थी, वो फर्स्ट वुमेन स्कूल, इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर है, और ये सोशल वर्क भी करती थी। तो यहाँ पर व्हाट डिड सावित्री बाई फुले वर्क फॉर, ही किसके लिए काम करती थी? सावित्री बाई फुले वॉज अ टीचर एंड social farmer. She worked towards tackling some of the major social problems, including humans liberation. तो इसका सही जवाब है सेकेंड क्वेश्चन। Observe the picture carefully. Identify the person in the picture. Describe work in 3 and 4 sentences. तो यहाँ पर क्या कर रहा है आदमी? मटकियाँ बना रहा है। तो इसे देखकर 1-2 लाइन सेंटेंस लिखना है। This is a picture of potter who is making pots out of clay. After making these pots, they are burned and strengthened. They are used to cool water in the hot season. तो ये मटकियों को बनाकर उसे क्या करता है, गरम इसमें सेकता है, उसे ठंडा करता है और उसके बाद उसको बिकाता है। तो 25 क्वेश्चन। हियर इज ए ग्रेट सेविंग्स ऑफ समर। तो यहाँ पर ऑफर क्या है, ग्रेट सेविंग्स ऑफ समर।
What is the offer given below? Great savings. In which season do we eat more ice cream? In summer season. Next question. Observe the clipping. Answer the question. Johnson & Johnson announced that its single-shot COVID-19 vaccine was 66% effective in preventing moderate and severe cases of COVID-19 in its global phase 3 trials. Efficacy varied by region, with the shot proving 72% effective in the US, 66% effective in Latin America and around 57% effective in South. तो यहाँ पर कोविड-19 के बारे में उन्होंने क्या बोला, एक शॉट लिखा है, तो एक अनाउंसमेंट दी है कि तो इतना सीवियर केसेस हम इफेक्टिव तरीके से वैक्सीन देकर उसको कम कर चुके हैं. तो व्हाट इज द स्टडी अबाउट, तो इसका ये किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? COVID-19 वैक्सीन was 66% effective in preventing moderate and severe cases of COVID-19 in its global phase 3 trials. 3 trials में ये पूरे ग्लोबल में क्या है, इतना इफेक्टिव हो चुका है. Which region proved highly effective in COVID-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ हुआ, कौन से रीजन में, कौन से मुल्कों में? एफिकेसी वेरिड बाय रीजन, तो इफेक्टिव कहाँ है? विद द शॉट प्रूविंग 72% इफेक्टिव इन यूएस, 66% इफेक्टिव इन लैटिन अमेरिका एंड अराउंड 57% इफेक्टिव इन साउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन नंबर. तो यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. देखिए, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 5 to 6 सेंटेंस. तो ये पिक्चर को देखिए और 2-3 जुमलों में इसका जवाब लिखिए. तो यहाँ पर कैसा पिक्चर नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, पार्क में खेल रहे हैं और चिड़िया उड़ रही है. यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स है, एरोप्लेन्स है, गांव का मंजर है और बोट वगैरह है. तो एक लेडी यहाँ पर बच्चे को ले जा रही है. इट हैज़ द बेस्ट सीन इन विच चिल्ड्रन आर प्लेइंग, राइडिंग ऑन द रोड, शिप्स इन द लेक एंड एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग इन द स्काई. This is a morning scene in which trees, mountains, trains, etc. are clearly visible. Next question. Read the given table carefully and match the items in column 1. Column A and column B. तो यहाँ पर देखिए column A में क्या है? Plants prepare food with the process of photosynthesis. तो यहाँ पर फर्स्ट का जवाब क्या है? Plants prepare food with the process of photosynthesis. Sundew leaves are long hair like plants drooping outwards. Pitcher plant, ये है कीड़ों को खाता है. Pitcher plant has jug shaped leaves. Venus flytrap has long leaves. Smell of pitcher plant liquid attract bees. Sundew has a sticky liquid that attracts butterflies. Here next, construct a meaningful story with the help of clues given in a title to the story. तो यहाँ पर एक स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसे यहाँ पर गैप दिया है तो उसको हम फिलअप करना है. वन डे डॉग, ये एक कुत्ते की कहानी आपको तो मालूम होगी. हड्डी लेकर एक ब्रिज के ऊपर से गुजरते रहता, उसको हमें यहाँ क्या है नहीं कंप्लीट करना है. तो देखिए यहाँ पर वन डे अ डॉग कैरिंग अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, ही हैड स्ट्रीम क्रॉसिंग ब्रिज, ही लुक्ड डाउन एंड सॉ हिज ओन शैडो. तो यहाँ पर एक बार एक कुत्ता क्या है नहीं, एक हड्डी को, गोश्त का टुकड़ा, एक हड्डी को लेकर अपने मुंह में रख लेकर एक ब्रिज को क्रॉस करते रहता है. तो वो सडनली क्या करता है, उसकी नज़र पानी में पड़ती. तो नदी में पड़ने के बाद वो क्या थिंक करता, यहाँ पर अब एक डॉग है. थिंकिंग इट वॉज अनदर डॉग विद अनदर पीस ऑफ मीट. तो एक और हड्डी लेकर यहाँ पर ये खड़ा है. तो सो ही मेड अ बग. तो ये क्या सोचता, वो भी मुझे चाहिए, वो भी हड्डी मैं लेना चाहता हूँ. तो क्या करता वो, सो ही मेड अ बार्क, ओपन हिज माउथ. तो मुंह खोलने के बाद एंड शॉट द पीस ऑफ मीट फेल आउट. तो क्या होता, वो हड्डी पानी में गिर जाती है. ड्रॉप इनटू द स्ट्रीम एंड लॉस ऑफ हिज मीट. तो इसलिए वो है नहीं, उसका वो खाना भी वो खो देता. तो ये स्टोरी कंप्लीट हुई. नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन.
boy of 10 was to cross the road. He stood on the footpath for a long time. एक 10 साल का लड़का क्या है, एक रोड को क्रॉस करते रहता, तो फुटपाथ का तो वो क्रॉस रोड के किनारे खड़े रहता, बहुत देर तक खड़े रहता. उसके बाद देर वॉज नो साउंड ऑफ एनी व्हीकल, वहां पर कोई भी गाड़ियों की साउंड नहीं आने की वजह से वो क्या करता, ही डिसाइड टू क्रॉस द रोड. वो क्या करता, रोड क्रॉस करने का इरादा करता. ही वॉज मूविंग वेरी स्लोली अक्रॉस द रोड. वो क्या करता, बहुत स्लोली क्या करता, रोड को क्रॉस करने की कोशिश करता. ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रोड देयर बाइसिकल साइलेंटली टुवर्ड्स द बॉय. तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या करती वहां से, a group of students rode their bicycles silently towards the boy. वो एक 5-6 लड़कों का ग्रुप आकर क्या करता, उस बच्चे को बहुत आहिस्ते से आकर सडनली ब्रेक डाल के उसे जोर से बेल बजाती. तो इसलिए वो बच्चा क्या होता, डर कर घबरा जाता. द बॉय ट्रेम्बल एंड कोलैप्स. द बॉयज गिगल्ड एंड रोड अवे लाफिंग लाउडली. तो इसे देखकर वो स्टूडेंट्स क्या करती, हंसते हुए चले जाते, उसका मजाक बना देती है. हु वांटेड टू क्रॉस द रोड. तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करना है. अ बॉय ऑफ 10 टू क्रॉस द रोड. 10 was cross the road. When did the boy decide to cross the road? There was no sound of any vehicle. Why did the boy collapse? They suddenly applied brakes and rang the bell violently. The boy trembled and collapsed. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील अबाउट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. तो आप तुमना कैसा फील हो रहा, वो स्टूडेंट्स कैसा बिहेव करे बच्चे के साथ. स्टूडेंट मेक मिस बिहेवियर विद द बॉय. नेक्स्ट यहाँ पर 31st क्वेश्चन क्या है, लेटर राइटिंग है. राइट अ लेटर टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग योर ग्रांट टू 3 days of लीव. इमेजिन यू आर रम्या और रोहन. तो आप एक रम्या और रोहन है, इस तरह इमेजिन करके 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, गवर्नमेंट हाई स्कूल बीजापुर. तो ऐसा एड्रेस लिखना है, तुम्हारा नाम वगैरह ये डालकर लेटर लिखना है. तो यहाँ पर 2 यहाँ पर फ्रॉम 2 नहीं आना है, यहाँ फ्रॉम आना. टू द क्लास टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल बीजापुर. गवर्नमेंट हाई स्कूल बीजापुर. सब्जेक्ट क्या लिखना, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस. सर और मैडम, आई एम रोहन, स्टूडेंट ऑफ class 8. With due respect, I would like to inform you that I will not be able to attend school from 13/2, 2024 to 15/2, 2024 for 3 days. I am going to my hometown with my family. It's been a while since I visited my hometown and my grandparents do expect me with my family. Therefore, I request you to kindly grant me a leave of 3 days for those absence of those days. Thank you. Your obedient student Rohan, class 8. पेरेंट सिग्नेचर. तो रोल नंबर डालना. तो यहाँ पर लेटर राइटिंग हो गया. तो हम आज 8th स्टैंडर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल कर चुके हैं. तो नेक्स्ट हम अब तो इसी तरह हमारे मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे नवाज़ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए. और बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे. अगली वीडियो में मुलाकात होंगे. वहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़.